Hello, students. After having learned the basics of psychological foundations of education, we are now going to learn about different schools of thoughts in psychology in specific context of education. The first school of thought is structuralism, which is the basic one, the first step towards making psychology a scientific discipline. Early attempts, when it was not a science, it was not a specific discipline. At that time also, human always tried to understand human mind. What is in the mind, how the mind works. Everyone was interested in understanding the mind. So, the earliest efforts were made by philosophers who tried to understand the human mind in their own way. शुरुआत के तौर पर जो दार्शनिक थे, उन्होंने ह्यूमन माइंड को समझने का प्रयास किया उनके अपने तरीके से। और उस वक्त मनोविज्ञान नाम का कोई ऐसा विषय जो आज के तारीख में है वैसा नहीं था, इस आकृति में, इस आकार में, इस प्रारूप में नहीं था। 1800 के बाद एक बदलाव आया, एक बहुत बड़ा सा बदलाव आया दो साइकोलॉजिस्ट्स के हाथ से। Dramatic changes came during 1800s with the help of two research psychologists who actually made this change in the nature of the discipline. जिस प्रकार से मन की विज्ञान तैयार हो रहा था या मन को स्टडी करने की बात हो रही थी, उस तरीके में एक बड़ा सा बदलाव आया. It was actually a change in the method in which we try to understand the human mind. The researchers were German psychologist Wilhelm Wundt, who developed a psychology laboratory in Leipzig, Germany. And the second one was the American psychologist William James, who founded a psychology laboratory at Harvard University. You can understand the time frame also, nearly same, 1832 to 1920, lifetime of Wilhelm Wundt, and 1842 to 1910, that was the time frame of William James. आप इन दोनों के जो समय काल है उनको समझ सकते हैं, लगभग 1832 से 1920, 1842 से 1910, ये समय काल में ही ये जो डेवलपमेंट्स हैं, विकास है, इस तरफ हम लोग आगे बढ़ पाए और दो रिसर्च लैबोरेटरी स्थापित हुए विलियम वुंड और विलियम जेम्स के हाथों से. विल्हेम मैक्समिलियन वुंड, इनको हम साइकोलॉजी के फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं. कई बार इनको आधुनिक साइकोलॉजी के भी जनक के रूप में जाना जा सकता है और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक के रूप में भी जाना जाता है. सो विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंड is supposed to be or is known as the father of psychology, as well as father of modern psychology, as well as father of experimental psychology, because he started something new in the field of psychology that actually helped the discipline to grow as the way we are now having this knowledge. Wundt's research in his laboratory in Leipzig focused on the nature of consciousness. चेतना का प्रकृति कैसी है, ये जानना उनका उद्देश्य था, उनका
एक पर्पस रहा है। और उनके रिसर्च लैबोरेटरी में जो लिप्सीज में था वो उनको इसी तरह के विषय के ऊपर उन्होंने शोध किया या रिसर्चेस किए। और उनके साथ उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे। वुंट एंड हिज स्टूडेंट्स का मानना था that it was possible to analyze the basic elements of mind and to classify our conscious experiences scientifically. So, वुंड और उनके स्टूडेंट्स या छात्रों का मानना ये था कि जो मन है उनको हम अलग अलग कुछ आधारभूत तत्वों में बांट सकते हैं या विश्लेषित कर सकते हैं। एंड जो हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, अर्थात जो हमारे जो चेतन में आपके अनुभव होते हैं, सचेतन रूप से जो आप अनुभव करते हैं, उसको हम वैज्ञानिक रूप से क्लासिफाई कर सकते हैं। So it was actually the assumption or belief of Wundt and his followers that we can we can make parts of the mind into some basic elements. We can compartmentalize the mind into some basic elements, and then we can classify our whatever the conscious experiences we can gain, we can classify them and classify them in scientific terms. So when you are classifying, that means you are actually identifying some common elements, and then you put those experiences into one class, and some other kind of experiences which are similar, and you are putting those things into a different class. So there are different classes of conscious experiences, and that can be done by splitting up or by analyzing the mind into the basic elements. That was what the basic assumption or belief of Wundt and his students. So Wundt began the field known as structuralism, a school of psychology. And the goal of structuralism was to identify the basic elements or the structures of psychological experiences. तो वुंट ने जो रास्ता हमें दिखाया उनका नाम था स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं कि अगर मन की संरचना की बात हम करें या साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस, जो मनोवैज्ञानिक मन से जो आपके अनुभव जुड़े हुए हैं, उनके कुछ बेसिक तत्व कैसे हैं या उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस पर उनका लक्ष्य, इनको जानना उनका लक्ष्य था। और interestingly, to create a periodic table of elements of sensations, similar to the periodic table of elements that had recently been created in chemistry. अगर आप समय काल को देखेंगे तो इसी समय के दौरान लगभग मेंडलीव के पीरियडिक टेबल आया था, जो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे बहुत शुरुआत में, बचपन में, या जो लोग साइंस में जुड़े हुए हैं दे नो। तो जैसे पीरियडिक टेबल बनता था, डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स को या तत्वों को एक एक खाने में रख करके और उनको एक पीरियड में या एक ग्रुप में डाला जाता था, ठीक वैसे ही उनका आइडिया था टू क्रिएट अ पीरियडिक टेबल। और उन टेबल में अलग अलग जो खाना है या अलग अलग बॉक्सेस है, अलग अलग ग्रुप्स है, उनके अंदर डिफरेंट तरह के सेंसेशंस के एलिमेंट को या इंद्रियजात जो सेंसेशंस हैं उनका कुछ तत्वों को अलग अलग रूप में क्लासिफाई करके उनको रखा जाए और फिर उनको एक वर्गों में बांटा जाए या पीरियड्स में बांटा जाए। तो ये उनका उस वक्त का एक आइडिया था। सो the goal was to identify basic elements and then to represent them similar to the periodic table as in chemistry, putting basic sensational elements into different spaces and then making them a group or classifying them into groups. So that was the basic idea of Wundt research. What methods they have done? What methods they have utilized? The methodology of structuralism was very interesting.
Before structuralism came, the methods were basically intuition. अर्थात जब दार्शनिक लोग मन के बारे में बात करने चाह रहे थे या मन को समझने का प्रयास कर रहे थे, तो हमारा मेथड कैसा था? हमारा मेथड था इंट्यूशन, या आपके अंतर्दृष्टि, आप उसमें कैसे देखते हैं, आप अपने आप से बुद्ध ने देखा या किसी ऋषि मुनियों ने देखा, उनको लगता है, उनकी इंट्यूशन है कि ऐसा होगा, मन ऐसा है। इसीलिए विभिन्न तरह के दर्शनों में आपको मन के विभिन्न प्रकार पाए गए, जैसे कि आप सांख्य दर्शन देखेंगे, या आप योग देखेंगे, या विभिन्न तरह के जो दर्शन है हमारे पास, वेस्टर्न साइकोलॉजी में भी, वेस्टर्न फिलोसफी में भी माइंड को स्टडी करने के लिए इंट्यूशन का सहारा लिया गया। बट द structuralism, which was the basic first step towards making psychology a proper discipline, their method was a little different. The method was method of introspection. Introspection was also to attempt to create a map of elements of the consciousness. Introspection जो method था, ये method use किया गया था to create a map of elements of consciousness. चेतना के विभिन्न तत्वों को अगर एक मैप बनाया जाए उनसे, या उनको प्रोजेक्ट किया जाए, तो कैसे हो सकता है, इसके लिए उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को यूज किया। इंट्रोस्पेक्शन क्या है? इंट्रोस्पेक्शन इन्वॉल्व्स asking research participants to describe exactly what they experience as they work on mental tasks, such as viewing colors, reading a page in a book, or performing a math problem. तो इंट्रोस्पेक्शन किस प्रकार से किया गया? जैसे कि अगर आप कुछ रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स लें और उनको आप बोलें कि आप जो भी आपके अनुभव हो रहे हैं उसको एग्जैक्टली डिस्क्राइब करें, उसका एकदम उनको टू द पॉइंट आप क्लियरली जैसा है वैसे ही आप उसका वर्णन करें। किस तरह के टास्क? जैसे कि किसी भी तरह के मेंटल टास्क, जैसे कि जब वो कोई कलर देख रहे हैं, या कोई एक बुक पढ़ रहे होंगे, या वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई रीजनिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, व्हाटएवर, जो भी कोई भी उनको मेंटल काम दिया गया है, मेंटल टास्क, मानसिक कार्य, उस वक्त उनका एक्सपीरियंस क्या है, उसका यथायथ अगर वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो वही प्रोसेस को इंट्रोस्पेक्शन कहा गया। So introspection involves asking research participants to describe their experiences while taking on or going through some kind of mental exercise. That is the introspection. A participant who is reading a book might report, for instance, that he saw some black and colored, straight and curved marks on a white background. जैसे कि कभी-कभी हो सकता है कि आप जो कोई बुक पढ़ रहा है उसके लिए उसको लगता है कि जब हम बुक पढ़ रहे थे तो हमें कुछ काले और कुछ कलर्ड लाइंस एंड कुछ मार्क्स हैं जो हमें कुछ ही सफेद बैकग्राउंड में दिखा। दैट इज माय एक्सपीरियंस। In other studies, the structuralists used newly invented reaction time instruments to systematically assess not only what the participants were thinking, but also how long it took them to do so. It is very important. At that time, different machines were also being discovered, and that is why the structuralists used certain kind of machines to study those psychological experiments also. So they used some reaction machine instruments to understand not only what the participants were thinking, but also to note down how long they are taking to respond to the mental activity. तो सिर्फ क्या सोच रहे हैं यही देखना नहीं था उनको, वो ये भी देखना चाहते थे कि उसको देखने के लिए या उसको समझने के लिए उनको कितना समय लग रहा है। और इसके लिए उन्होंने उस वक्त बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स
डेवलप किए जा रहे थे और उन इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लिया उन्होंने और रिएक्शन टाइम को चेक करने का भी फैसला किया। तो ये जो स्टडीज थे ये पहली बार कुछ चीजों को हमारे सामने लेकर आए, जैसे कि रिसर्चर्स ने पहली बार ये समझा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेंसेशन ऑफ अ स्टिमुलस एंड द परसेप्शन ऑफ दैट स्टिमुलस। अर्थात आप देख रहे हैं कि आपको गर्मी लगी, ठीक है, आपको गर्मी लगी, मैंने आपको आपके स्किन में कुछ एक गर्म चीज लगाया और थोड़ी देर के बाद आपने रियलाइज किया कि अरे हमको तो गर्मी लग रही है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेंसेशन ऑफ द स्टिमुलस, दैट मीन्स द वो गर्म जब आपके स्किन को टच करता है, दैट एट दैट टाइम सेंसेशन बिगिंस, क्योंकि वहां से इंद्रियों द सेंसेस स्टार्ट रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। तो सेंसेशन शुरू हुआ एंड देन यू रियलाइज दैट कुछ तो गर्म लग रहा है, वो परसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस। तो देयर इज अ डिफरेंस, दोनों एक जैसा नहीं है। तो गर्म चीज सटाने से, किसी चीज के साथ लगाने से इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको उस चीज की परसेप्शन हो। कई बार ऐसा होता है, हमारे आसपास घटनाएं घटती हैं, हमारे कान में आती हैं, हमारे आंख के सामने से गुजरती है, बट देन वी कैन नॉट परसीव देम। सो फर्स्ट टाइम इन स्ट्रक्चरलिज्म के एक्सपेरिमेंट्स के साथ ये रिसर्चर्स को समझ में आया कि द सेंसेशन ऑफ द स्टिमुलस, उद्दीपकों को सेंस करना और उनको परसीव करना, प्रत्यक्ष करना, दोनों अलग बातें हैं। So this was the first time when researchers come into the conclusion, they understood that sensation of the stimulus and the perception of the stimulus, they are a lot different and it is not required that they occur in the same time. Secondly, the thing that was done for the first time in the history of psychology was the idea of using reactions time to study the mental events. This time now in many researches reaction time is a very important aspect. तो reaction time, कितना देर में आप react करते हैं, sensation होने के कितना देर के बाद आप react करते हैं, that gives a lot more cues to understand the mental processes going inside the participant. तो ये पहली दफा ऐसा हुआ जब हमने इस तरह के स्टडीज को टेकअप किया और रिएक्शन टाइम को मेंटल इवेंट्स को स्टडी करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका दिया। इंट्रोस्पेक्शन किस प्रकार के हैं? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब यहाँ पर एक सिंपल इंट्रोस्पेक्शन नहीं है जो मेरा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, ठीक वैसा ही नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन जो यहाँ पर कहा गया, इसको ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन या एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन कहा गया, अर्थात वस्तुनिष्ठ इंट्रोस्पेक्शन है। जो आप देख रहे हैं, बस हमने तो देख लिया लेकिन हम आपको समझा नहीं सकते कि मैंने क्या देखा, दैट इज नॉट द इंट्रोस्पेक्शन। ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन ऐसा है कि जो हमने देखा उसको हम एज इट इज प्रॉपरली उसको कैटेगराइज करके वर्णन कर सकते हैं। बट इस इंट्रोस्पेक्शन के मेथड्स को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम समझते हैं वो बाहर हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं क्लियरली, बट यहाँ से एम्पेरिकल मेथड्स को यूज करने का एक सिलसिला स्टार्ट हुआ, एक रास्ता दिखा, एंड दिस वाज द फाउंडेशन टू यूज द एम्पेरिकल मेथड्स टू अंडरस्टैंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। इसके पहले ऐसा कभी नहीं था। इसके पहले जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव है उसको हम समझने के लिए वो व्यक्तिगत ही था, उसको हम ऑब्जेक्टिव वाइज नहीं कर पाते थे, या उसको हम एक क्रिटिकली बाहर दिखा नहीं सकते थे, एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा सकते थे। बट यहाँ से हमने एक प्रयास शुरू किया कि जो व्यक्तिगत अनुभव है या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है, हाउ टू यूज देम, हाउ टू use the empirical methods to understand those kind of experiences. So ये जर्नी जो है वो इंट्यूशन से लेकर के एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन की है, अर्थात फिलोसफी से लेके धीरे धीरे हम साइकोलॉजी को एक
साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरफ लेके आ रहे हैं. An important aspect of the structuralist aspect was that it was very rigorous and scientific. Rigorously उसको किया जाता था, बहुत ध्यान से देख करके, बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत स्ट्रिक्ट साइंटिफिक वे को फॉलो किया जाता था. And the research marked the beginning of psychology as a science because it demonstrated that mental events could be quantified. अर्थात मन के जो मानसिक जो इवेंट्स होते हैं या जो क्रियाएं होती है, उनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, उनको हम संख्याओं में दिखा सकते हैं, उनको हम क्वांटिटी में, राशि में परिवर्तित कर सकते हैं, उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको मेजरेबल बना सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसके कारण साइकोलॉजी को हम धीरे धीरे एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में सामने पा रहे हैं. But the structuralists also discovered the limitation of introspection. जैसे कि बहुत जो ट्रेन्ड रिसर्च पार्टिसिपेंट्स थे, उनके लिए भी ये कई बार समस्यात्मक होती थी कि वो अपने जो व्यक्तिगत अनुभव है उसको वो रिपोर्ट कर पाए. So it was actually a very big problem often that the participants who were given a proper training also, they also could not report their experiences as it was required by scientific methods. So that was the limitation of introspection which the structuralists found. कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन थे आप जानते ही हैं. पहले तो हमने जो बात किया विल्हेम वुंट के बारे में, एंड जो उनके एक स्टूडेंट हैं एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर. टिचनर वाज अ वेरी वेरी अर्डेंट फॉलोअर ऑफ वुंट और उन्होंने उनके आइडियाज को आगे बढ़ाया. और इनका समय काल आप देखें 1867 से 1927 तक. और ये बहुत वेल नोन स्ट्रक्चरलिस्ट हैं. जैसे हमने कहा वुंट के स्टूडेंट भी थे और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में आने के बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एक लैबोरेटरी स्थापित किया. उन्होंने भी इस इंट्रोस्पेक्शन के मेथड को आगे बढ़ाया और लगभग 40,000 सेंसेशंस को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उनको क्लासिफाई किया या रिलेट किया कुछ बेसिक एलिमेंट्स में, लाइक विजन, हियरिंग एंड टेस्ट. तो इट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टिचनर. विलियम वुंड और टिचनर ने ये जो स्टार्टिंग किया, ये जो एक शुरुआत थी, दैट एक्चुअली मार्क द बिगिनिंग ऑफ द वेरी बेसिक आइडिया ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन. और ये इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि मन को समझने में, जैसे हम लोगों ने पहले सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन को एक मेथड के रूप में जाना था जब हमारे दार्शनिकों ने इसको स्टार्ट किया, लेकिन इसको साइंटिफिक बनाने के लिए, इनको सर्वग्राह्य या एक यूनिवर्सल रूप देने के लिए इन्होंने क्या किया, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का सहारा लिया और उस वक्त के जो मेथड हैं इंट्यूशन को चेंज करके इंट्रोस्पेक्शन या ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन में लेकर आए, जहां से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ साइकोलॉजी के फील्ड में. एंड देन इट एक्चुअली made this thing ready to study the subjective experiences or an abstract concept of mind into some concrete results or output. That was the beginning of the psychology. Thank you.